Okay, students, good morning. It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90. And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. I imagined I would bob to the surface like a cork. Now, the author is saying here that he has gone in a long way into the pool, long way down into the pool, and these 9 feet are more than like 90 feet because of he feel very dirty, or we may say very uh, uncomfortable, and before he touched the bottom his lungs were ready to burst. It means his lungs were making puzzled regarding for his life or regarding for his existence. तो वो 9 फीट उसके लिए 90 फीट से कम नहीं थे. जब उसके पैरों ने, लेग्स ने बॉटम को टच किया तो ऐसा लग रहा था कि उसके लंग्स जो हैं वो वर्स्ट होने वाले हैं. ओके, बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे फीट ने बॉटम को टच किया, आई समन्ड ऑल माय स्ट्रेंथ. He collected, it means he gathered all his strength and made what he was thinking. What he was thinking on that time, what was the planning of him? क्या planning था उसका? What he was thinking when he has been tossed into the water? What he was thinking on that time? Yes, who will tell what he was thinking when he has been tossed in the water? क्या प्लान था उसका जब वो पानी में टॉस्ड कर दिया गया, यानी कि उसको पानी में धक्का दे दिया गया? तो वो क्या प्लानिंग बना रहा था रास्ते में? Who will tell? Yes, Kritika. What was the planning of him? Mom thought that he will make a big jump and paddle to the edge of the pool so that he can come up. Okay, he was making a plan that he will try to come upside and he will get a great spring upwards, and after it he will come on the water surface like a cork ball. Okay, उसने क्या सोचा था कि हम पूरी तरह से अपनी स्ट्रेंथ को समन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, गैदर करेंगे, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड. और जैसा कि उसने सोचा था कि वो बहुत तेज उछलेगा ऊपर की तरफ, ओके, अपवर्ड्स, एंड आई इमेजिन्ड आई वुड वॉक द सरफेस लाइक ए कार, एंड इट वाज द इमेजिनेशन ऑफ हिम दैट he would bob to the surface just like a wall of cork. कर्क की वॉल की तरह वो वाटर की सरफेस पर आ जाएगा. That was the imagination of W.C. Belam. That was the imagination only. And instead I came up slowly. It means I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing. देखिए, ये केवल प्लान था, but it has not been succeed. जो उसका प्लान था वो सक्सेड नहीं हुआ. ओके, I opened my eyes. मैंने अपनी आंखों को खोला and saw nothing.
और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया. What was the story before it? Yes, tell me what happened with him. Tina. Tina, tell me. Tell me about the story before it. Hello, Tina. Are you listening me? देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है. अनुष्का, you tell me. Hello, Anushka. Tell me what happened and starting before this. नहीं, क्यों क्लास नहीं ली थी आपने? आप जिस दिन मेरी just a minute wait, I am saying something to you. आप मेरी क्लास में थी और आपने एक ऑडियो बजा रखा था. I have listened the class, so that is why get information about it कि मेरी क्लास में आपको आना है तो सिर्फ मेरे जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान देना है. Otherwise you can go from my class. Okay? No need to come. मुस्कान चौधरी, इससे पहले क्या हुआ था इस स्टोरी में? Tell me about this. मैम हमने क्लास ही नहीं ली. Very good. हमारे पीसी खराब हो रहा था इसलिए हम ले नहीं पाए थे. Okay. इनका ये एक्सक्यूज हो गया कि इनका पीसी खराब हो गया था. नेक्स्ट, ईशा, if you were in the class, Yes, ma'am. okay, tell me what happened before it. What happened before it? किसके बिफोर में? अरे इस पैराग्राफ देखिए ये पूछा जा रहा है मुझसे किसके बिफोर में मैडम. इस पैराग्राफ में जो हमने पढ़ाया है उससे पहले क्या हुआ था. On this story, what happened? Very good. Very nice. Okay. Next, Pinky. What happened there? Before this paragraph, what happened there? मैम फर्स्टली वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पे गया था. नहीं, no, not at all. I'm asking before it. इसके बहुत लंबा आगे चले गए. मैं जस्ट इससे पहले वाला पूछ रही हूँ. मैम वो पानी से डर गया था फिर उसने अपना कॉन्फिडेंस वापस बिल्डअप किया. अरे oh God, whatever I am asking, मैं पूछ रही हूँ कि इस पैराग्राफ से पहले क्या हुआ था. मैम एक स्किनी बॉय जो लगभग 18 इयर्स ओल्ड था उसने Skinny boy. Very good. Skinny boy. He was skinny boy. That is why he told him. Yes, ma'am. Skinny. How can a skinny person can do it? Yes, Kritika. You were in the class. What happened before it? Mom, when the author was sitting at the edge of the pool, Yes. a boy came whose figure was like a spaceman, and he took him and tossed the author in the pool, deep down inside the pool. And author was afraid. It's not clear to me. But then he If it is not clear to me, then how is it possible the other listen you? Other will listen you. Clear to me. अच्छे से बोलिए. हाँ. Then the author was sitting at the edge of the pool. Yes. A boy with a physical specimen came, whose Yes. legs and arms were strong, his muscles were strong, Yes. and he tossed the author inside the pool, deep down inside the pool. Yes. That is correct. So, one young warrior boy came there and tossed the author into the pool, which was 9 feet deep. Okay? So, 9 feet look like 90 feet. Which figure of speech is used here? If the literature students are here, which figure of speech is used here?
9 feet were equivalent like 90. कोई जरूरत नहीं है कि खाली लिटरेचर के स्टूडेंट बताएंगे, कोई भी बता सकता है. Which figure of speech is used here? क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. कितनी नॉलेज है तुम्हारे अंदर, ये बात इस तरह के क्वेश्चन से पूछी जाती है. Tell me, which figure of speech is used here? If Riddhi is here, Riddhi Bansal is here. Yes, ma'am. Tell me which figure of speech is used here, Riddhi. Ma'am, metaphor. Not at all. How can you say this? Okay, like 90, like के अकॉर्डिंग तो सिमिली है, बट मैंने आपसे ये पूछा है कि 9 feet were more like 90 and यहाँ तक, मतलब कि ठीक है आपने like के अकॉर्डिंग मेटाफोर सॉरी सिमिली बता दिया, बट ये वाला 9 feet जो है वो मुझे 90 feet लग रहे थे. Which figure of speech is used here? कोई जरूरत नहीं बहुत आगे पढ़ाने की, पहले आप लोग को थोड़ी चीजें तो आनी चाहिए. कृतिका कुमावत, which figure of speech is used here? Hyperbole. Very good. स्पेलिंग बताओ. HYPERVOLE. Yes, HYPERVOLE. Hyperbole. What is the meaning in Hindi of hyperbole? बड़ा चढ़ा के कहना. Yes, अतिशयोक्ति. इसको हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार. ओके, तो बड़ा चढ़ाकर कहना. रिद्धि, is it clear to you? रिद्धि बंसल, is it clear to you or not? No, ma'am. देखिए 9 feet को 90 feet कह देना, ये चीज को बड़ा चढ़ाकर कहना है. सो दैट इज वाई हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर यूज किया गया है. अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है जहां पर किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना. ओके, बेटर और वर्स, ग्रेटर और बेटर और वर्स और ग्रेटर और ग्रेटेस्ट इज यूज्ड. मतलब कि बहुत जो ग्रेटेस्ट मतलब बहुत ज्यादा बता देना. ओके, जो चीज छोटी हो उसको थोड़ा हो उसको बहुत ज्यादा बता देना. और बेटर और वर्स्ट का मतलब मतलब कि जो बुरी है थोड़ी उससे भी बहुत घटिया बता देना. तो ये वर्क होता है हाइपरबोल का. ओके, इसलिए इसको अतिशयोक्ति कहा जाता है, बड़ा चढ़ाकर कहना. इज इट क्लियर टू यू? अब आपको क्लियर हो गया कि नहीं अभी भी? बताइए. हाँ, बाकी के बच्चे तो आराम से बैठे हुए हैं. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? पिंकी? Yes, ma'am. यस मैम. तो ये हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है इसमें, क्योंकि 9 feet को 90 feet बताया गया है. हाइपरबोल एज अ फिगर ऑफ स्पीच which represent the things greater or great or better or worst which are in the present situation. यानी जो प्रेजेंट कंडीशन होती है उनकी, उनसे ज्यादा बेटर और वर्स्ट बता दिया जाता है, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट बता दिया जाता है. मतलब कि ग्रेट है तो उसको ग्रेटेस्ट बता दिया जाएगा. ठीक है. I can behold thousands of daffodils in a single glance. ये देखिए, वो पोएट कह रहा है कि मैं एक ही लुकिंग में, एक ही ग्लांस में
1000 डैफोडिल्स देख सकता हूँ, नरगिस के फूल। ओके, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? वर्ड्सवर्थ ने कहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने यूज किया है। तो ये हाइपरबोल है क्योंकि एक ही ग्लास में कोई भी थाउजेंड्स डैफोडिल्स नहीं देख सकता। So that is why here hyperbole figure of speech is used. Okay. Next. I imagined I would walk the surface like a cork. और केवल मेरी इमेजिनेशन ऐसी थी कि मैं सरफेस पे कॉर्क की वॉल्व की तरह आ जाऊंगा। And instead I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing. What water? अब देखिए, जैसे ही मैंने अपनी आंखों को खोला, मैंने I saw nothing, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। But water, water and water and water everywhere because of he was in the pool. क्योंकि वह पूल के अंदर था, that is why उसको हर जगह वाटर दिखाई दिया। Tina has gone from the class because of she has learned a lot of things here and she has gone. Now, water that had a dirty yellow tint to it. Here the author wants to describe that in water he is feeling a dirty yellow tints. Tints it means उसको जो छोटी छोटी सी पॉइंट्स से दिखाई दे रहे थे उस वाटर के अंदर, डर्टी येलो टिंट टू इट, यानी वो जो येलो, येलो कैसे? क्योंकि सन जो है उसकी किरणें जो है वो पड़ रही हैं वाटर पर और उसका कलर जो है वो येलो कलर का है। अब उसको वो वाटर डर्टी दिख रहा था बिकॉज ऑफ ही वॉज पैनिक। और जब सिचुएशन पैनिक होती है तो हर चीज हमको कैसी दिखाई देती है? डर्टी। सो दैट इज व्हाई he saw the water is dirty and yellow tinged to it. I grew panicky. मतलब मैं बहुत पैनिक हो गया था, बहुत परेशान हो गया था और I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only a water. I reached up. मैं ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। I was trying to go upside to grab a rope. Grab a rope, rope यानी रस्सी, grab मतलब पकड़ना। देखिए, मुझे लग रहा था कि जैसे मैं रस्सी की तरह कुछ पकड़ रहा हूँ। I was trying to catch it, लेकिन there was nothing. Everywhere was water. So I clutched water only in my hands. यानी जो मैं अपनी मुट्ठी में पाता या मैं उसको कोशिश करता पकड़ने की, मुझे लगता था कि जैसे मैं रस्सी को पकड़ लूंगा और अपने हाथों में, तो मुझे क्या, मेरे हाथ में केवल पानी आ रहा था बिकॉज ऑफ देयर वॉज नथिंग। आई इमेजिन ओनली, कि मैं केवल एक इमेजिन कर रहा था कि वहां पर एक रस्सी हो गई या हो और मैं उसे पकड़ लूं। बट इट वॉजंट पॉसिबल, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था बिकॉज देयर वॉज वाटर एवरीवेयर। हर जगह पानी ही पानी था। सो आई वॉज नॉट कैपेबल टू कैच एनीथिंग। आई वॉज सफोकेटिंग। सफोकेशन होने लगा उसको क्योंकि वाटर के अंदर था। दैट्स व्हाई उसका दम घुटने लगा, सफोकेट होने लगा। आई ट्राइड टू येल, येल इट मीन्स शाउट। मैंने कोशिश की चिल्लाने की, बट नो साउंड कैम आउट, लेकिन पानी के अंदर से आवाज बाहर नहीं आई। इज इट क्लियर? आर यू सिटिंग हियर ऑल ऑफ यू और नॉट? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So all the things are clear to you?
Harshika? Yes, ma'am. Okay. Isha? Hello, Isha. Got it or not? Yes, ma'am. Okay. So now, then my eyes and nose came out of water, but not my mouth. देखिए क्या है कि जब तक पूरा नहीं बाहर आ जाए तब तक बाहर नहीं आ सकता था वो, तो दैट्स वाई क्या था, उसकी आईज और इसकी नोज जो है वो पानी के बाहर आ गई, बट पूरा उसका मुंह जो है पानी के बाहर नहीं आ पाया. ओके, ऑल्दो ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट. ये क्वेश्चन बनेगा, आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है कि किस तरीके से वो पानी में से बाहर आने का प्रयास कर रहा था और किस तरह से वो प्लानिंग बना रहा था और उसने क्या क्या किया. ऑल द थिंग्स विल बी डिस्क्राइब्ड देयर. अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स वाला, तो यू विल राइट ऑल द थिंग्स देयर बिकॉज ऑफ इट मे बी गिवन. क्योंकि देखो बच्चों, ये क्वेश्चन के लिए मैं ऐसा इस चैप्टर के लिए इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि इसको कई बार रिपीट किया गया है. मैं ये नहीं कह सकती ये क्वेश्चन नहीं आएगा बिकॉज ऑफ जब हम लोग ये कोशिश करते कि इतने चैप्टर्स में से पिछले साल आ चुका है, पिछले 5 इयर्स तक रिपीट हुआ है, तो आई हैव सीन कि ये चैप्टर बिल्कुल भी नेग्लेक्टेड नहीं किया गया. हर बार इसको यूज किया गया, या तो लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चंस में. दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट वन. और आप लोग इसमें से हर एक चीज को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करिए, जिससे आपका 1 मार्क्स भी कट नहीं होना चाहिए. नाउ सी, आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, swallowed and choked. देखिए, मैं जो था फेल हो गया. द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी की सतह पर आ नहीं पाया. आई वॉज नॉट कैपेबल टू कम एट द सरफेस ऑफ द वाटर. ठीक है, अब swallowed and choked. देखिए, पानी ने क्या किया, मुझे निगल लिया. एंड चोक्ड, चोक्ड का मतलब है स्टॉप्ड, रोक दिया. इज इट क्लियर टू अनुष्का? अनुष्का, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? आर यू हियर? हेलो. Yes, ma'am. इफ ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू. Yes, ma'am. But Okay. previous नहीं है तो मैं एक बार पढ़ लूंगी खुद से. प्रीवियस नहीं है ना, वैसे आप सब पढ़ लोगे अपने आप कि आप सब इंटेलिजेंट हो. जो क्लासेस में नहीं आते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट. दे कैन डू ईच एंड एवरीथिंग themselves. ओके, आई नो वेरी वेल. क्लासेस के अंदर जो लोग हैं उनको नहीं आता, इसलिए दे आर कमिंग. और आप जो लोग नहीं आ रहे हैं क्लासेस में, they are very intelligent. That's why they can get so much. Okay. Now, I tried to bring my legs up. मैंने क्या किया, कोशिश की. मैंने अपने legs को ऊपर लाने की कोशिश की, but they hung as dead. अब देखिए, नाउ ही बिकम्स एग्जॉस्ट. बहुत थक गया बेचारा पानी के अंदर. अब क्या है कि उसके जो लेग्स थे वो डेड जैसे लगने लगे उसे. डेड वेट्स, भारी हो गए एकदम से. पैरालाइज्ड, जैसे पैरालाइज हो गए हों. ओके. एंड रिजिड, रिजिड मतलब कठोर हो गए, हार्ड हो गए. ओके, आगे. A great force was pulling me under. एक बहुत तेज की फोर्स थी, शक्ति थी, was pulling me under, जो कि मुझे अंदर खींच रही थी. ग्रेविटेशनल फोर्स. अब वो नीचे की तरफ ही रहेगा. Although he was trying to come upside, but he was not capable to do it. Okay. I screamed, but only the water heard me. I was shouting,
It means the author was shouting, screaming. But only the water heard me. Shouting और screaming में क्या अंतर होता है? Can you tell me? If Kritika, you can tell me what is the difference between shout and scream? हम shouting को चिल्लाना, और screaming क्या होता है? हम चीखना, ऐसे अच्छा, चीखने और चिल्लाने में अंतर होता है? out of pain, हम out of pain या out of fear जब हम चीखते हैं. Okay. If Riddhi is here, Riddhi. Hello Riddhi. Are you here? मतलब दर्द से चिल्लाना. है बेटा, दर्द से चिल्लाना, स्क्रीम्ड नहीं. कई बार स्क्रीम्ड देखिए वहां पर भी था, उस चैप्टर में 10th के चैप्टर को पढ़ा रही हूँ, उसके अंदर भी था स्क्रीम्ड. लेकिन इसका आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक चीज बताएंगे कि ये जो है, एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि शाउट जो वर्ड है, ये जब कभी हमारे इमोशंस हर्ट होते हैं, हम दूसरों के ऊपर चिल्लाते हैं, ठीक है, उसके लिए हम शाउटिंग यूज करते हैं. हाँ, आपने वैसे एक तरह से सही बोला कि स्क्रीम्स जो है, जो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए हम जब कुछ चीखते हैं हेल्प के लिए, तो दैट वन इज कॉल्ड स्क्रीमिंग. ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग. लेकिन ये सिमिलर वर्ड है, दैट इज वाई हमको जब इनको एक्सप्लेन करना होता है, रिप्लेस करना होता है, तो वी कैन डू दिस. ओके, नहीं तो फिर हम एक जैसे शब्द लिखेंगे, तो जब हमें रिप्लेस करने का टाइम आता है, तो ऑन दैट टाइम वी कैन यूज सिंपली. बट जब उसको डिफ्रेंशिएट करना हो, तो ऑन दैट टाइम अलग अलग, दोनों अलग अलग है. ठीक है. नेक्स्ट, I had started on the long journey back to the bottom of the. अब मैंने स्टार्ट कर दी, although I tried to come outside. फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल. यानी कहाँ के लिए लॉन्ग जर्नी बोला है? वाई इज इट कॉल्ड लॉन्ग जर्नी? यस ईशा, इसको लॉन्ग जर्नी क्यों कहा है? वाई द ऑथर कॉल्ड इट लॉन्ग जर्नी? लॉन्ग जर्नी क्यों कहा है, जल्दी बताइए. वो नीचे से ऊपर आ रहा था ना, अरे भाई, लॉन्ग जर्नी हो गई क्या? ये 9 फीट का था, जरा सा जगह, जरा सा 9 फीट कैसे बोल रहे हैं? ना उसको तो 90 फीट लग रहा था ना, वो मतलब उसके लिए तो बड़ा था. हाँ तो बेटा बड़ा था, पर लॉन्ग जर्नी क्यों हो गया वो? मैम उसका दम घुट रहा था ना, इसलिए उसको टाइम बहुत ज्यादा से लग रहा था, लॉन्ग जर्नी टाइप का. हाँ, ही वॉज पजल्ड, वो बहुत ज्यादा परेशान था, और ही वॉज कम टू आउटसाइड ऑफ द पूल. और जो लंबे समय से वहाँ मतलब थोड़ी सी देर से ही संघर्ष जो था, वो बहुत लंबा समय उसके लिए था, क्योंकि he was not feeling well. He was getting suffocate. That is why. It's already 10:21 and I will take class of 10th. So thank you students. Have a nice day all of you. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am.